So finally we have reached the custom cell formats. Now this is the most interesting and can be the most mind-boggling part of this formatting discussion. This is not as simple as this bold and italics features. This will require some attention from your side. Okay, this is the reason why I have not discussed it with other cell formats. So let us begin the discussion. सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कस्टम सेल फॉर्मेट्स किस तरह के होते हैं. ओके, सो चेक इट आउट हियर. ये सभी कस्टम सेल फॉर्मेट्स हैं. नाउ इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, नाउ यू विल फाइंड दिस वेरी वियर्ड. द व्हाट इज हैपनिंग हियर, this rupee symbol, then hash, then zeros and question mark and at the rate, everything at the same place. So this can be confusing at times. So let us try to break it down and see how it can be useful for us in our Excel journey and financial modeling as well. Okay. So in अभी हमने जितना भी patterns जो formats देखा, उन सभी में एक चीज़ common है and that is the semicolon. This one. This is the separator in all the cases. Separator. Now what does it separate? Separation चार चीज़ों के बीच में होता है. Custom cell formats में चार parts होते हैं. Okay. The first one pertains to positive values. Okay, the next one pertains to negative values. मतलब क्या है, अगर कोई फॉर्मूला अगर आपने लगा रखा है, लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ सो व्हाट डज इट मीन, अगर इस फॉर्मूला का वैल्यू पॉजिटिव है, देन द फॉर्मेटिंग दैट वी हैव पुट, दैट वी हैव असाइन्ड ऑन द पॉजिटिव पार्ट इज गोइंग टू गेट अप्लाइड. अगर ये फॉर्मूला का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, let's say if this is negative, then the formatting which we have assigned in the negative part will get applied. Similarly, अगर इस ये फॉर्मूला का वैल्यू ज़ीरो हुआ तो थर्ड पोर्शन विल गेट अप्लाइड. अब ज़ीरो में आप किस तरह की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं. समटाइम्स वी डू नॉट वांट टू शो द ज़ीरो, सो वी वांट टू कीप द सेल ब्लैंक इन केस द वैल्यू इज़ अ ज़ीरो. तो आप वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. और यू कैन गिव अ डैश इन प्लेस ऑफ ज़ीरो. So that kind of formatting can be used in this place. Similarly, negative values के लिए कभी हम brackets को use करना चाहते हैं, कभी आप minus symbol को show करना चाहते हैं. So that can be assigned in this negative portion. And if these three are not applicable, then this fourth one will get applied. Okay. Let us go to the custom cell formats again. अब इस जो मैंने बताया उसी को देखते हैं. नाउ लुक एट दिस वन. इन दिस केस यू विल सी दैट देयर इज वन सेमीकोलन इन बिटवीन एंड देयर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में यू सी सम हैश एंड जीरो कॉम्बिनेशंस, एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो देयर इज द सेम कॉम्बिनेशन बट विथ अ नेगेटिव वैल्यू. सो द फर्स्ट पार्ट किस लिए है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए. सेकेंड पार्ट है नेगेटिव वैल्यूज के लिए. जीरो एंड टेक्स के लिए यहाँ पे कुछ असाइन नहीं किया गया है. इन दिस केस व्हाट डू यू सी, इन दिस केस ऑल्सो देर आर टू पार्ट्स, बट इस बार सेकेंड केस के लिए उन्होंने कलर भी असाइन किया कि इफ देर इज अ नेगेटिव वैल्यू देन इट हैज टू बी इन रेड कलर. ओके, एंड एज वी गो अलॉन्ग यू विल सी देर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स, and in these cases you will see that there are four parts. Now there are three semicolons in between. First part is this one, then there is a semicolon, then this is the second part, another semicolon, this is the third part, and finally the fourth, this is the fourth part. So this is how this is the main structure or the pattern how a custom cell format works. Now we are going to get into more details. ये zero का मतलब क्या है, hash का मतलब क्या है, so on. Okay. Let us start our discussion around zero and hash. So zero and hash, या जिसको आप pound भी बोल सकते हैं. These are basically the decimal placeholders. Okay. तो किसी नंबर के बाद आपको कितना डेसिमल शो करना है, that can be done using this zero and hash. So let us take an example. If there is a number
लाइक दिस एंड हम उस पर फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाहते हैं 0. सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिज़ल्ट? तो पहले ये नंबर को मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ. अब इस पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं 0. सो गो टू कस्टम एंड यूज़ 0. ओके. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि हमने यहाँ 0 के बाद में कुछ भी डेसिमल स्पेसिफाई नहीं किया है, सो दिस नंबर विल बी शोन एज एन इंटीजर विदाउट डेसिमल प्लेसेस. सो if I press OK, you see that there is no decimal places after this integer. सेम चीज़ हम हैश से भी कर सकते हैं. सो फिर से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एंड अब आपको यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट यूज़ करना है हैश. तो क्योंकि यहाँ पे हैश मुझे नहीं दिख रहा है, सो आई कैन एडिट दिस जनरल हियर एंड यहाँ पे हम प्रेस करेंगे हैश. अब हैश प्रेस करने से भी सेम रिजल्ट मिलेगा बिकॉज वी हैव नॉट स्पेसिफाइड कि हमें कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए. सो इट विल शो मी द इंटीजर ओनली. ओके. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? इनको सेंटर अलाइन कर देता हूँ. हाँ. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड हैश? दोनों में तो सेम ही रिजल्ट मिल रहा है. यस, द डिफरेंस इज 0 इज मैंडेटरी वेयर इज हैश इज ऑप्शनल. ऑप्शनल इन द सेंस कि अगर इस सेल पे जिसमें हमने हैश फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, अगर इस सेल में कोई नंबर नहीं है, मतलब अगर कोई नंबर लेट्स से 0 है, वैल्यू इज 0, इन दैट केस दिस सेल विल बी अपियरिंग एज ब्लैंक. बट 0 के केस में अगर कोई वैल्यू 0 भी है तो वो 0 की तरह ही शो होगा. सो लेट मी शो यू. अगर मैं इस नंबर को अगर मैं यहाँ पे 0 प्रेस कर दूँ, then this will appear as a blank cell, it will appear as an empty cell. but formula bar में 0 दिख रहा है, but यहाँ पर 0 नहीं दिखाई देगा. but in the above case अगर मैं यहाँ 0 लिखूँ तो you can see the 0 as well. so that is the difference between 0 and hash. So let's say we want one decimal place on the right hand side of the decimal. So in that case we will have to use something like this, and our number is, let's say, this one. So what is going to happen if I apply this formatting on this number? So let me do that on this side. तो अब इस पे हम अप्लाई करेंगे कस्टम फॉर्मेट दिस. सिंस यहाँ पर हैश डॉट हैश ऑलरेडी नहीं है तो वी कैन एडिट दिस जनरल हियर एंड यहाँ पर टाइप कर देंगे हैश डॉट हैश. नाउ mind you that this is only for the digits on the right hand side. उसके लिए हमने एक हैश यूज़ किया है, बट लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप एक हैश दें या 3 हैश दें, that does not matter, बिकॉज आपका जो नंबर है वो चेंज नहीं होने वाला फॉर्मेटिंग से. यस, ये समझना ज़रूरी है. नंबर फॉर्मेटिंग क्या करता है, आपके जस्ट प्रेजेंटेशन को चेंज करेगा कि आपको कितने डिजिट्स दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं, या आपको कुछ और भी क्या लुक्स वाइज आपको, प्रेजेंटेशन वाइज आपको क्या चेंजेस करने हैं. फॉर्मेटिंग सिर्फ उसको चेंज कर सकता है, आपके इनपुट के, आपके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता है नंबर फॉर्मेटिंग. ओके. सो 123 को अगर मैं यहाँ सिर्फ हैश लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3 शो होगा 123 का, बिकॉज इन दैट केस आपके तो सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी. यस. सो 123 विल रिमेन 123. सिर्फ राइट हैंड साइड में जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना शो करना है, बट कैलकुलेशन में वो पूरा लिया जाएगा .456. ओके. सो दिस इज व्हाट दिस इज गोइंग टू डू. इट विल कीप द नंबर वट एवर इट इज द इंटीजर इंटैक्ट. राइट हैंड साइड में जो 123 है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, दैट विल रिमेन इंटैक्ट. सिर्फ राइट हैंड साइड में हमने क्या क्या फॉर्मेटिंग के लिए कमांड दिया है एक्सेल को, दैट we want to show only one digit on the right side of the decimal. So this is what is going to happen when I press OK. So this is the result. अब अगर हमें 2 डिजिट शो करना है तो आप बस यहाँ 2 हैश प्लेस कर दीजिए. So उसका क्या इम्पैक्ट होगा. अच्छा, one more thing, instead of changing the custom cell format again and again, what I can do, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए हम टेक्स्ट फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं. तो टेक्स्ट फार्मूला को यूज़ करते हैं, सिलेक्ट दिस वैल्यू
एंड अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फार्मूला क्या करेगा, आपका जो भी इनपुट है उस पर आप जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसका रिजल्ट आपको यहीं दिखा देगा। तो कस्टम सेल फॉर्मेट में जाकर चेंज करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, इट विल बी मोर ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन द स्टफ। सो अब हम इसको एंटर कर लेते हैं। अब ये वही इम्पैक्ट दिखा रहा है जो आप कस्टम सेल फॉर्मेट में चेंज करने से होता। सो एज वी कैन सी नाउ दिस टाइम इट इज़ शोइंग मी ओनली द 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ इनपुट, दिस इज द फॉर्मेट एंड दिस इज द आउटपुट। ओके, अब देखिए ये चीज़ हम ज़ीरो से भी कर सकते थे बिकॉज ज़ीरो इज ऑल्सो अ डिजिट प्लेस होल्डर, बट देर इज़ वन डिफरेंस, लेट मी शो यू। कि अगर लेट्स से हमें चाहिए कि हम सिर्फ नंबर को शो करना चाहते हैं विदाउट डेसिमल प्लेसेस, तो इन दैट केस आई कैन ओनली कीप इट ज़ीरो एंड हमारा एग्जाम्पल सेम रखते हैं एंड इसका आउटपुट हो जाएगा दिस। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, बिकॉज हमने सिर्फ ज़ीरो लिखा है इसका मतलब जो इंटीजर है सिर्फ वो शो होगा, डेसिमल प्लेसेस शो नहीं होंगे। ओके, अगर मैं डेसिमल प्लेसेस शो करना चाहूँ तो इस नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अगर मुझे डेसिमल प्लेसेस शो करना है यूजिंग ज़ीरो, इन दैट केस आई विल हैव टू यूज़ 0.00। ओके, नाउ दिस विल शो 2 डिजिट्स, बट अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये वापस से 0 बन जाएगा। सो फॉर दैट आई विल हैव टू यूज़ अ एपोस्ट्रोफी, तो 0.00। Okay, now this is the formatting that we want to apply. So what is going to be the result? Same as this one, आपको नंबर के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस दिखाई देंगे। So if I apply this formula, then you find this. इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर 2 zeros मेंशन किया है, then आपके नंबर पे अगर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं बाद में, 2 डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल प्लेस, देन इट इज़ गोइंग टू शो एज इट इज़। एंड अगर 2 डिजिट नहीं है, लेट्स से आपका नंबर से 1 to 3.4 है, तो ये ज़ीरो जो है ये फॉर्मेटिंग आपके नंबर पे फोर्स की जाएगी एंड द सेकेंड डिजिट विल अपीयर एज 0। सो इफ आई प्रेस एंटर नाउ, व्हाट डू यू सी, 1 to 3.4 था हमारा नंबर, बट फॉर्मेटिंग ने क्या किया, ये जो 0 है सेकेंड प्लेस पर, दिस हैज़ बीन फोर्स्ड इनटू आवर रिजल्ट। बट सेम इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विथ हैश। अगर हम हैश के केस में ट्राई करेंगे, अगर हमारा नंबर, तो हैश डॉट हैश हैश लेते हैं एंड दिस टाइम इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मेट, व्हाट डू यू सी, हैश का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके नंबर में आपका जो रिजल्ट है उसमें अगर सेकेंड डिजिट है तो वो शो होगा एंड अगर नहीं है तो नहीं शो होगा। हैश इज ऑप्शनल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड हैश। ओके, but if I use hash in case of a 0 value, then what is going to happen, Excel will not display this value because this is optional. अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हो तो वो शो होगी एंड अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब द वैल्यू इज 0, एब्सोल्युटली नील, इन दैट केस दिस विल अपीयर एज अ ब्लैंक सेल। नाउ देखिए, आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला बट दिस इज अपीयरिंग एज अ ब्लैंक सेल। अब और हम क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज the number formats. So within number formats, what we can do more, we can place 1000 separators. ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा भी था, you will see here. Yes, so इसको हम यूज़ करेंगे हैश कॉमा हैश हैश 0 एंड इसके लिए यहाँ पर हम कोई लार्ज वैल्यू ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट इज द रिजल्ट, यू गेट द नंबर विथ 1000 सेपरेटर्स। ओके, नाउ व्हाट इफ देयर इज अ नंबर जिसके एंड में आप कोई मेजरमेंट यूनिट शो करना चाहते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो लेट्स से द नंबर इज समथिंग लाइक 10.2 एंड हम क्या चाहते हैं कि इस नंबर के एंड पर सेंटीमीटर शो हो। सो हाउ कैन वी डू दैट, आपको 10.2 शो करना है तो आप 0.0 ले सकते हैं,
एंड अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पर सेंटीमीटर को ऐड कर दीजिए. नाउ द रिजल्ट विल बी 10.2 सेंटीमीटर. अब ऑल्दो ये दिखने में 10.2 सेंटीमीटर है, बट दिस इज एक्चुअली 10.2 ओनली. ओके, अगर हम इसको, अब ये फॉर्मेटिंग ऐसे करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज अगर हम नंबर के साथ अगर मेजरमेंट यूनिट्स को लिखते हैं, उसको फिर आप कैलकुलेशंस में यूज़ नहीं कर पाते हो, बिकॉज फिर एक्सेल उसको एज ए नंबर ट्रीट नहीं करेगा. लेट मी शो यू, अगर मैं कुछ भी उसके साथ प्लस माइनस करना चाहूँ, देन एरर, एक्सेल विल गिव एन एरर. ओके, सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन वी कैन डू दिस. इस केस में क्या हुआ, आपका जो नंबर है वो सिर्फ नंबर ही है, बस डिस्प्ले हो रहा है 10.2 सेंटीमीटर. ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ शो करूँ 10.2, एंड अब मैं इसकी वैल्यू, इसके कस्टम फॉर्मेटिंग कर देता हूँ 0.0 साथ में सेंटीमीटर. नाउ व्हाट डू यू सी, आपका जो नंबर है उसका जो कंटेंट है दैट इज ओनली 10.2, वहाँ पर कोई भी सेंटीमीटर नहीं है, बस दिखने में आपको सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है. सो अब ये नंबर जो है आप एज अ, इसको फॉर कैलकुलेशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. एंड नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग. एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग कस्टम फॉर्मेट्स, यहाँ पर आप जैसा फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें आप वैसा खुद से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. दीज वेयर ओनली द बिल्ट इन फॉर्मेट्स जो एक्सेल ने अपनी तरफ से प्रोवाइड किया है. सो कस्टम सेल फॉर्मेट्स गिव्स यू द फ्रीडम. व्हाट मोर कैन वी डू? Let's say there is another big number here and we want to use instead of 1000 separators, what we can do, we can write thousands as k also, right? 11,000 को हम 11k बोलते हैं. and so how can we do that? उसके लिए आपको ज़ीरो चाहिए, मतलब वो नंबर आपको चाहिए, एंड उसके बाद आप यहाँ पर k लिख देंगे. सो इसको एक्सेल कैसे ट्रीट करेगा कि हमको वैल्यूज़ को थाउजेंड्स में बताना है यूजिंग अ के. सो व्हाट डू यू सी, दिस इज शोन एज 123k. ओके, अच्छा, अभी तक हम सिर्फ सिंगल फॉर्मेट से ले रहे हैं, मतलब वी आर कंसिडरिंग ओनली द फर्स्ट सेक्शन. नाउ व्हाट डज इट मीन? क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट सेक्शन लिया है कि यहाँ पे फिर चाहे पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, दिस फॉर्मेटिंग इज गोइंग टू अप्लाई इन ऑल दोज केसेस. बट बिकॉज हमने नेगेटिव वैल्यू या जीरो वैल्यू के लिए कोई अलग फॉर्मेटिंग स्पेसिफाई नहीं की है, तो एक फॉर्मेटिंग मतलब दैट इज गोइंग टू अप्लाई इन ऑल द केसेस. नाउ लेट अस कंसिडर अ केस इन विच वी विल यूज फॉर्मेटिंग डिफरेंटली फॉर द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज. तो यूजुअली व्हेन बिल्डिंग फाइनेंशियल मॉडल्स, व्हाट वी वांट टू हैपन कि पॉजिटिव वैल्यूज से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगेटिव वैल्यूज को हम क्या करना चाहते हैं, ब्रैकेट में प्लेस करना चाहते हैं. यस, वी वॉन्ट टू दिस टू हैपन. तो अब ये, सॉरी मैंने कॉमा प्लेस कर दिया था, अभी आपको यहाँ पे सेमी कॉलन देना. दिस सेकेंड पोर्शन परटेन्स टू द नेगेटिव वैल्यूज, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट प्लेस करना पड़ेगा अराउंड आवर नंबर. तो हैश अंडर द ब्रैकेट्स मतलब वहाँ पे जो भी नंबर हो उसको ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया जाए. एंड द थर्ड केस कैन बी, अगर आपको जीरो वैल्यूज को शो करना है या नहीं करना है, तो अगर हम उसको हाइड करना चाहें तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए. In that case that will be hidden. So this formatting, so ये formatting ultimately क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर है तो that will be shown as it is, no problem. नेगेटिव formatting will be, negative value will be kept in brackets, and अगर वो कोई जीरो वैल्यू है then that will be shown as an empty cell. Okay, so अब इस formatting को अप्लाई करके देखते हैं. अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो नो डिफरेंस, एंड अगर वो डेसिमल्स में है then also since we have not used any decimal places here, that is not going to come up here. अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए चेक करते हैं. so what do you see within brackets? so this is the usage of this custom formatting. and अगर यहाँ पे ज़ीरो हो तो it will be shown as a empty cell. now this is going to be very useful, right? and what else?
आप और क्या चेंजेस कर सकते हैं? लेट्स से समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी वांट टू शो नेगेटिव वैल्यूज इन, लेट्स से रेड हाईलाइटेड। अब आप कलर को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये ब्रैकेट्स यूज़ करना है, देन आप स्पेसिफाई कर दीजिए रेड। पॉजिटिव को हमने ब्लैक ही रखा है, नेगेटिव के लिए हमने रेड स्पेसिफाई कर दिया, एंड अब आपका जो नंबर है उसे हम शो करना चाहते हैं एज अ नेगेटिव नंबर। ओके, सो इफ़ आई अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग नाउ, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ ये जो टेक्स्ट फार्मूला है दिस इज़ नॉट एबल टू कैच द कलर कोड एज वेल। सो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं, तो इस केस में हम यहाँ पर डायरेक्ट कस्टम सेल फॉर्मेट्स में जाकर इसको चेंज करते हैं। ओके, सो कस्टम में जाकर यहाँ जनरल को हम चेंज करेंगे, एंड यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव के लिए हमें कुछ चेंज नहीं करना है, नेगेटिव के लिए हमें उसे रेड रखना है, and also we want to show the negative value as well. So if I press OK now, so what do we see? That the color has changed to red. So this is how we can use custom formats in case of numbers. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं रिगार्डिंग द डेट्स। Let's say we put a date here, and now I want to show कि मुझे इस डेट में से सिर्फ मंथ को शो करना है एंड और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये 12 मंथ चाहिए और कुछ नहीं। तो फॉर दैट आई कैन यूज m। ओके, एंड इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, व्हाट डू यू सी कि ये सिर्फ मंथ शो हो रहा है। इफ आई वांट टू शो द मंथ इन एज अ टेक्स्ट, दैट इज December, DEC, in that case आपको ट्रिपल एम देना है, you can use the triple M format, and this is going to show as December. एंड अगर आपको फुल टेक्स्ट चाहिए देन आपको 4 times M प्रेस करना पड़ेगा, एंड नाउ दिस विल रिफ्लेक्ट एज December. ओके, तो सेम इज गोइंग टू, इसको मैं सेंटर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। नाउ सेम कैन बी डन विद डेट्स एज वेल। तो अगर मुझे डेट चाहिए तो यू कैन यूज दिस वन, यू कैन यूज सिंगल डी, एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ। एंड इफ आई वांट टू शो इट एज अ डे, अगर मुझे डेट की जगह डे चाहिए देन यू कैन यूज ट्रिपल डी, एंड दिस विल शो एज अ डे। एंड अगर आपको फुल डेट चाहिए, फुल डे का नाम चाहिए, देन 4 times डे। ओके, सिमिलरली वी कैन डू विथ ईयर्स एज वेल। वाई से आपको 20 मतलब 2020 का 20 मिला, एंड अगर आपको फुल ईयर चाहिए, 2020 पूरा चाहिए, तो आपको 4 times वाई शो करना पड़ेगा। ओके, और क्या कर सकते हैं, अभी ये जो डेट है दैट इज इन DDMMYY फॉर्मेट। यस, तो अगर मैं इसको MMDDYY करना चाहूँ तो जस्ट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए द फॉर्मेट दैट यू वांट टू स्पेसिफाई, एंड नाउ द रिजल्ट विल बी शोन एज MMDDYY। एंड इफ यू वांट टू शो इट एज अ लाइक फुल टेक्स्ट आपको शो करना है इन द लॉन्ग फॉर्मेट, December 31, 2020, इस तरह से अगर आपको लिखा हुआ चाहिए, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, अब इसके लिए आपको December हो गया, D से हमारा डेट आ गया, एंड YYYY से हमारा ईयर आ गया। सो दिस इज December 31, 2020। अगर आपको December भी फुल चाहिए तो आप यहाँ पे 4 times M कर दीजिए, एंड December भी कंप्लीट आ जाएगा। ओके, और हम कर सकते हैं, लेट्स से हम कोई भी ईयर है, हम उसको कोई भी वैल्यू है, कोई भी ईयर है, वी वांट टू शो इज एज ईयर 1, ईयर 2, इस तरह से। तो अगर मैं इसे एज अ ईयर 2 शो करना चाहता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर एज डेथ ऑफ सेंटीमीटर। तो उसी तरह से तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हैश यूज़ करना है, एंड उसके साथ में आप यहाँ पर नहीं, पहले आपको ईयर चाहिए, उसके बाद आप
यहाँ पर हैश प्लेस कर दीजिए. ओके, एंड नाउ दिस विल अपीयर एज ईयर 2. तो अब आप यहाँ पे जो भी चेंज करें, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. So that's about the date formats. Now there are some specific cases as well. So let me show you some specific formats now. You know, in banks, mostly the operation personnel, the officials in the operations department who used to process your checks, they are very much worried with the format, the inputs provided by their clients. You know, the corporate clients, how do they give the instruction for making payments? They can actually send an Excel sheet of all the payments to be made, including all the name of the clients, the bank account details, the check number, and so on. And on the basis of that Excel sheet, the payments are made from their bank account. Okay, so what problem that those bank officials face, that the clients do not specify their check numbers appropriately, because in cases we know that the check number has to be a 6-digit number, but if that number starts with a 0, so let's say the number is 0 2 3 4 5 6, but Excel उसको as a number क्या treat करेगा, 2 3 4 5 6. So this will be shown as this way. So how can we fix this? We can change the formatting to 2 3 4 5 6. आप यहाँ पर 6 zeros place कर दीजिए. ओके, आई फॉरगॉट द एपोस्ट्रॉफी. 2 3 4 5 6. अगर आप यहाँ पर 6 zeros प्लेस कर देंगे, देन एक्सेल विल, सिंस वी नो दैट 0 इज़ अ मैंडेटरी फिगर, एंड अगर यहाँ पर ऑलरेडी 6 zeros नहीं है, तो एक्सेल विल फोर्सफुली प्लेस द 0 digit देयर. ओके, सो इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग नाउ, व्हाट डू वी सी? एक जो हमारा 6 digit वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया. तो अब अगर यहाँ पर किसी का नंबर के सामने 2 zeros भी हैं, देन ऑल्सो देर इज नो प्रॉब्लम, द नंबर विल स्टिल रिमेन एज अ 6 digit नंबर. ओके, नाउ दिस इज वेरी यूजफुल. एंड और आप स्पेसिफिक फॉर्मेट्स केस अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स से इन द केस ऑफ फोन नंबर्स, तो फोन नंबर्स कैन बी समथिंग लाइक, it's a 10 digit number, right? 5 6 7 8 9 10. Now this is not my number, of course, and let's say the formatting we want to apply is, we want to keep the separator like something like this. Okay, so what will be the result? It will be shown like this. Okay, so this was pretty much simple. And now one more thing that we can do is hiding the content of a cell. अगर हमें किसी नंबर को शो ही नहीं करना है, तो आप इस फॉर्मेट के चारों पार्ट्स को आप ब्लैंक रख दीजिए. सो दैट इज़ अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम प्लेस करूँ, उसको भी ब्लैंक, मतलब पॉजिटिव पोर्शन को हमने ब्लैंक रख दिया, फिर नेगेटिव पोर्शन को भी ब्लैंक रख दिया, एंड ज़ीरो को भी ब्लैंक रख दिया, एंड उसके बाद आता टेक्स्ट, वो भी ब्लैंक रख दिया. सो नाउ व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, कि हमारा जो जहाँ, सॉरी दिस इज द फॉर्मेट अगेन, दिस इज द फॉर्मेट. ओके, यहाँ पर अब हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं. नाउ वॉट एवर बी द number here, that is not going to show up, that will be shown as a blank figure. Okay, so this is, if you apply this formatting on any number, then this will hide the content of that cell. This can also be very useful at times. So that was about the custom cell formats. We have discussed most of the portion of this custom cell formats. Well, there is a lot more to discuss within that, and I think that I don't think that much is required for us when, as far as finance, our finance related work is concerned. So जहाँ तक हमारे day to day task या financial modeling की बात है, then this much is way more than adequate to serve our purpose. Okay. Now let us discuss the pay special feature. So how can we access the pay special? Using Control Alt V. So we have this example here.
इसको इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. फॉर यूजिंग द पेस्ट स्पेशल फीचर यू हैव टू हैव सम डेटा कॉपीड. अगर कोई डेटा आपने कॉपी नहीं किया तो पेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा. सो उसको कंट्रोल ऑल्ट वी को यूज़ करने के लिए पहले आपके पास कुछ डेटा कॉपीड होना चाहिए. तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं. अब हम यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल वी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इस एरो पर भी क्लिक करेंगे पेस्ट के नीचे, देन ऑल्सो यू कैन एक्सेस पेस्ट स्पेशल. बट लेट अस चेक इट आउट हियर. तो सबसे पहले है ऑल. नाउ दिस ऑल इज सेम एज दैट ऑफ यूजिंग कंट्रोल प्लस वी. तो जो हम कंट्रोल प्लस वी करने से जो होता है दैट इज सेम गोइंग टू हैपन विद पेस्ट स्पेशल ऑल एज वेल. तो उसको चेक कर लेते हैं. मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ पेस्ट स्पेशल पर. सो इफ़ आई यूज़ ऑल्ट दिस ऑल नाउ देन दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम जो हम कंट्रोल प्लस वी से करते हैं. सो व्हाट इट डज, ये आपके जो भी नंबर्स है उसको पेस्ट करेगा, फार्मूलाज को भी पेस्ट करेगा, एंड आपकी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाएगी एंड एवरीथिंग. ओके, ऑल मीन्स ऑल. सो व्हाट आर द नेक्स्ट ऑप्शन? उसके बाद है फार्मूलाज. सो अगर आप फार्मूलाज को पेस्ट करते हैं तो आपका टेक्स्ट आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा एंड फार्मूलाज आ जाएगा, बट फॉर्मेटिंग वगैरह सब पीछे छूट जाएगा. सो अगर आपने कोई सेल फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है वो अप्लाई नहीं होगा, आपने बॉर्डर्स दिया वो नहीं आएंगे, आपने जो कलर किया वो नहीं आएंगे. सो ऑल दैट. सो इफ़ आई यूज़ ओके नाउ व्हाट डू वी सी कि जो कंटेंट था बस वो आ गया एंड फार्मूलाज आ गया. बट इस केस में जैसे यहाँ पे परसेंटेज सेल फॉर्मेट यूज़ किया हुआ था तो डैट हैज़ नॉट बीन टेकन केयर ऑफ. बॉर्डर्स भी नहीं आए एंड कलर भी नहीं आया. सो दैट इज व्हाट formulas, pasting formulas do. Next, pasting the values. So this is going to be the same as formulas except कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा था that will be pasted as a value, that will be pasted as a constant. Okay, when I press enter what do we see? Exactly the same case, but यहाँ पर जो है जो हमारी formulas थे that is pasted as value. Okay, again all control V. Next is using the formats. तो जो फॉर्मेटिंग हमने इस टेबल पर अप्लाई किया हुआ है सिर्फ वो कॉपी पेस्ट होगा. दैट इज दिस बॉर्डर एंड दिस कलर एंड दिस बोल्ड हियर, देन दिस परसेंटेज फॉर्मेट. सो इफ आई प्रेस ओके व्हाट डू यू सी दैट दिस इज परसेंटेज हियर, देन दिस इज बोल्ड हियर एंड दिस इज दिस कस्टम फॉर्मेट अगेन, एंड हमारे पास कलर आ गया एंड बॉर्डर आ गया. So when can this be useful? अगर हमने यहाँ पे let's say ये किया हुआ था ऑल कंट्रोल, हमने पेस्ट वैल्यूज़ किया हुआ था. अब मैं इसके फॉर्मेटिंग को ठीक करना चाहता हूँ तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं. तो ऑल कंट्रोल वी के बाद टी प्रेस करेंगे एंड ओके कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू फिक्स योर द फॉर्मेटिंग ऑफ योर टेबल. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इट. उसके बाद है कॉपिंग एंड पेस्टिंग द कमेंट्स. सो वी डू नॉट हैव अ कमेंट राइट नाउ, so let us first put some comment here. Coming to this insert comment, and now let's say this amount figure includes some values, xyz values. Okay, and if I want to copy and paste this, so even if you copy and paste this entire part, now only the comment is going to get pasted. If I press C and press OK, now only this comment has been pasted. Okay, and last thing is the validation. So for validation, if I will have to use the data validation feature here, तो वो हमने ऑलरेडी सीखा नहीं है अभी तक, बट यहाँ देख लेते हैं. तो डेटा वैलिडेशन में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्पेसिफाई सम क्राइटेरिया कि किसी सेल में क्या वैल्यू होना चाहिए. तो सो लेट अस थिंक ऑफ अ क्राइटेरिया कि ये जो कमीशन अमाउंट है दिस शुड नॉट गो बिलो 30,000. तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन 30,000. अगर उससे नीचे अगर वैल्यू हो तो एक एरर आना चाहिए दैट मिनिमम 30K is required.
इससे नीचे नहीं होना है। ओके, प्रेस कर देते हैं ओके। तो अब अगर यहाँ मैं रैंडमली टाइप करूँ 25,000, देन दिस इज गोइंग टू शो मी एन एरर। एरर क्या है? मिनिमम 30K इज रिक्वायर्ड, है ना। तो हमने जो ये कंडीशन स्पेसिफाई किया था। बट वैसे ये डेटा वैलिडेशन से वहीं काम करेगा जहाँ मैन्युअली आप डेटा को इनपुट कर रहे हैं। अगर वो एज अ फार्मूला कैलकुलेट होके आ रहा है तो डेटा वैलिडेशन का काम नहीं है। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ 25% कर दूँ तो वो फार्मूला चेंज हो जाएगा एंड 30,000 के नीचे वैल्यू चली जाएगी। तो डेटा वैलिडेशन इज एप्लीकेबल व्हेन यू मैन्युअली इनपुट द डेटा। सो अब ये जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ अप्लाई किया है, जो डेटा वैलिडेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, उसको अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहें तो पहले इसको Ctrl+C कर लीजिए एंड नाउ सेलेक्ट दिस हियर, Alt+Ctrl+V, देन वैलिडेशन के लिए N प्रेस करेंगे एंड प्रेस ओके। तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी स्पेसिफाई हो चुका है। ओके, उसके बाद ऑन द राइट साइड हियर ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो ऑल से वी ऑलरेडी नो, जो हमने पहले केस में देखा था, सब चीज़ एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे along with the source theme. तो if you go within the page layout tab, there is a option for applying themes, तो वो भी इसके साथ में कॉपी हो जाएंगी। नेक्स्ट इज ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, ये देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस डेटा को पेस्ट करूँ Ctrl+Alt+V एंड नाउ ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, तो उसके लिए आपको X प्रेस करना है एंड प्रेस ओके। सो व्हाट डू यू सी, सिर्फ बॉर्डर्स रिमूव हो गए। उसके बाद कॉलम विड्थ्स, नाउ दिस इज कॉलम विड्थ्स इज समटाइम्स वेरी यूजफुल। चलिए पहले यहाँ पे राइट साइड में पेस्ट वैल्यूज़ कर लेते हैं। ऑल्दो हमने Alt+Ctrl+V से पेस्ट वैल्यूज़ देख लिया है, तो आप अगर और एक तरीके से करना चाहें तो Ctrl+V प्रेस करेंगे, फिर Ctrl वापस से प्रेस करेंगे, फिर से V प्रेस करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग, पेस्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ को पेस्ट किया है, अब इसके केस में जो कॉलम विड्थ था वो एज इट इज़ नहीं आया। यहाँ जो हेडिंग्स के लिए जो कॉलम विड्थ स्पेसिफाइड था वो यहाँ पर एज इट इज़ नहीं आया। तो अब हम सिर्फ उस चीज़ को अगर अप्लाई करना चाहें Ctrl+C एंड इफ़ आई वांट टू पेस्ट ओनली द कॉलम विड्थ्स, तो उसके लिए आप ये प्रेस W प्रेस करेंगे एंड प्रेस एंटर एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और क्या है, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। नाउ दिस इज सेम एज फार्मूलाज, बट उसके साथ में क्या होगा, जो नंबर फॉर्मेट्स हमने यूज़ कर रखा है। नंबर फॉर्मेट्स हमने सेल्स फिगर के लिए हमने नंबर यूज़ किया है, कमीशन रेट के लिए हमने परसेंटेज यूज़ किया है एंड अमाउंट हैज़ बीन कैप्ट एट जनरल, तो वो भी एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। सो इफ़ आई प्रेस एंटर, व्हाट डू यू सी, दिस इज़ इन परसेंटेज, this is in number, this is in percentage and this is in general. Okay, so similarly for the values and number formats as well. And last is the merging conditional formats. So we have not yet done conditional formatting, so that we will see in a while. Okay, next, how can we do the arithmetic operations using paste special? So let us consider an example that this is a forecast of the sales figures. ये सभी sales figures जो यहाँ mentioned है, these are future projections. And अभी management ने एक view दिया है that all the sales figures in the future are to be increased by 10%. So how can we do that using paste special? अब अगर आप पेस्ट स्पेशल यूज़ ना करें तो आपको इन सभी फिगर्स को, बिकॉज यहाँ पे मैन्युअली इंसर्टेड है, तो इन सभी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 110%, या फिर यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ 1.1. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू, आप 1.1 कहीं पर लिख लीजिए, सो कॉपी दिस 1.1 एंड देन जस्ट सेलेक्ट दिस सेल्स वेयर यू वांट टू पेस्ट इट, देन Ctrl+Alt+V. अब यहाँ
देखेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको टैब प्रेस करना है एंड उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए एम प्रेस करना है, ओके, एंड प्रेस एंटर. सो व्हाट डू यू सी, all these numbers, all this sales data have increased by 10%. पहले क्या था 1 lakh and now this has increased to 1,10,000. 120 has increased to 132. So all these have increased by 10%. Okay. And in this case what we have done, actually हमने paste all कर दिया था. So a better way to do it would be कि आप इसको undo करके all control V वापस करेंगे. इस बार आप यहाँ से वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लीजिए v और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई को रहने दीजिए. ओके, सो इन दैट केस क्या होगा, ये आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो हैम्पर नहीं होगी, दैट विल नॉट गेट अफेक्टेड. एंड नाउ प्रेस ओके एंड नाउ दिस इज गोइंग टू वर्क फाइन. तो आपकी फॉर्मेटिंग भी सेम रह गई एंड आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हो गया. तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह से आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन भी कर सकते हैं. एंड तो एक सिंपल एग्जांपल एडिशन का भी देख लेते हैं कि अगर मुझे सभी सेल्स को 50,000 से इंक्रीज़ करना है, तो अगेन द सेम थिंग, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, फिर इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ऑल्ट वी, यहाँ से पेस्ट वैल्यूज़ कर लीजिए और नीचे यहाँ पर आप ऐड के लिए डी प्रेस कर दीजिए एंड प्रेस ओके. एंड ये सभी पर पेस्ट वैल्यूज़ होकर हमारा जो डेटा है वो 50,000 से इंक्रीज़ हो गया है. पहले 1 लाख था, अभी 1,10,000 था, अभी 1,60,000 हो गया. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग पेस्ट स्पेशल. उसके बाद है स्किप ब्लैंक्स, तो उसको भी देख लेते हैं. तो लेट्स से हमारा जो सेल्स का फिगर है वो नया स्पेसिफाई हुआ है, वो उसमें कुछ चेंजेस हुआ है. ईयर 1 में अब जो सेल्स फिगर है वो होना चाहिए 2,10,000. ईयर 2 में कोई चेंजेस नहीं है, ईयर 3 में हो गया है 3 lakhs एंड ईयर 4 में भी कोई चेंजेस नहीं है. तो अब इस चेंज को हम यहाँ पर कैसे रेक्टिफाई करें, तो एक तरीका तो आप मैन्युअली हर एक सेल को कॉपी करें, हर एक सेल को पेस्ट करें, यहाँ से कॉपी करें फिर यहाँ पे पेस्ट करें पेस्ट वैल्यूज़. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू, कंट्रोल सी, देन कम हियर, सेलेक्ट दिस एरिया, कंट्रोल ऑल्ट वी, यहाँ नीचे देखेंगे स्किप ब्लैंक्स का ऑप्शन है. ठीक है, तो यहाँ से आप स्किप ब्लैंक्स को एक्टिव करने के लिए पहले ऊपर आप वैल्यूज़ कर दीजिए V से, फिर टैब प्रेस करके यहाँ नीचे आएंगे एंड स्किप ब्लैंक्स के लिए B प्रेस करेंगे. एंड इफ आई प्रेस ओके देन व्हाट डू यू सी, जो हमारे जो ये सिर्फ ये दो सेल्स थे उनमें चेंजेस आया, इन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं आया, बिकॉज दिस ब्लैंक वॉज नॉट कॉपीड एंड पेस्टेड हियर. Only this 2,10,000 was copied and pasted here. So this is how we can skip the blanks using paste special. Okay, अब next आते हैं transpose. Transpose means interchanging data between rows and columns. मतलब कोई डेटा हॉरिजेंटली गिवन है, अब जैसे यहाँ पे ईयर 1, 2 and 3 दिस इज हॉरिजेंटली गिवन. अब इसको अगर मुझे वर्टिकली करना है देन दैट आई कैन डू यूजिंग ट्रांसपोज. तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं. इस डेटा को कॉपी करेंगे एंड अब यहाँ पे आपको पेस्ट करना है. तो पहले एक्चुअली इसका दो तरीका है, एक स्टैटिक अप्रोच, दूसरा है डायनेमिक. स्टैटिक इज द वन यूजिंग पेस्ट स्पेशल एंड डायनेमिक अप्रोच इज यूजिंग अ फॉर्मूला. तो पहले पेस्ट स्पेशल वाला तरीका हम देख रहे हैं. तो आपको क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल V करना है एंड यहाँ नीचे देखेंगे ट्रांसपोज, तो उसके लिए टैब प्रेस कीजिए 2 बार एंड अब ट्रांसपोज के लिए आप E प्रेस कर सकते हैं या फिर स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं. एंड नाउ प्रेस ओके. सो व्हाट डू यू सी कि जो डेटा पहले ईयर जो हमारे कॉलम्स में थे अब वो रोज में आ गए हैं एंड दिस पर्टिकुलर्स हियर हैज़ शिफ्टेड टू कॉलम्स हियर. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रांसपोज फीचर. अब सेम चीज़ हम चाहे तो फॉर्मूला से भी कर सकते थे. तो फॉर्मूला से कैसे करेंगे, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट द एरिया वेर यू वांट टू ट्रांसपोज दिस डेटा सेट एंड इट हैज़ टू बी एग्जैक्ट. अब यहाँ पे 5 रोज एंड 4 कॉलम्स है तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही वही रेंज आपको सिलेक्ट करना है. ओके, उसके बाद आपको ट्रांसपोज फॉर्मूला यूज़ करना है. तो टाइप करेंगे ट्रांसपोज, अब आप टैब प्रेस करके इसे यूज़ कीजिए. Now it is asking you to select the array.
तो उसके लिए आप एरो की से ऊपर आइए, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए एंड नाउ व्हाट यू हैव टू प्रेस, अब आपको इसको क्लोज करके एंटर नहीं दबाना है, आपको CSC स्ट्रोक यूज करना है। CSC स्ट्रोक इज कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, सो प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर तीनों एक साथ एंड व्हाट डू यू सी, एंड हमारा डेटा ट्रांसपोज हो गया। ओके, तो अब फॉर्मूला को चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज फार्मूला यूज़ हो रखा है। अब यहाँ पे बिकॉज फॉर्मेटिंग नहीं आया, ट्रांसपोज फार्मूला जब आप यूज़ करते हैं तो फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके ला सकते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फॉर्मेट्स के लिए T सिलेक्ट करना है एंड फिर आपको फॉर्मेट्स को ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा एंड प्रेस ओके। सो एसेंशियली हमारे फार्मूला से ही डेटा ट्रांसपोज हुआ है, बट हमने खाली फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई कर दिया। ओके, एंड इसकी एक खास बात क्या है, दैट यू कैनॉट डिलीट एनी सेल रो कॉलम आफ्टर ट्रांसपोज। अब आप किसी एक डेटा को डिलीट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, आपको इस पूरे एरिया को एक साथ ही डिलीट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ ट्रांसपोज वर्क्स। Okay, so now we are going to start with a simple topic, that is hyperlink. What is a hyperlink? Hyperlink is simply a link जिस पर क्लिक करके आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर या किसी दूसरी वेबसाइट पर रेफर कर सकते हैं। So how can we insert a hyperlink? You will find the hyperlink option, inserting a hyperlink option within this insert tab, and insert में आपको यहाँ link दिखाई देगा। Actually in earlier versions Excel used to call it hyperlink, बट अब न्यू वर्जन्स में एक्सेल ने इसको लिंक नाम दे दिया है। ओके, एंड द शॉर्टकट इज Ctrl+K। एंड ऑल्सो अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको देन ऑल्सो यू विल फाइंड दिस ऑप्शन हियर टू इंसर्ट लिंक। ओके, सो लेट अस बिगिन। these are the points that I need to discuss, starting with internal linking. इंटरनल लिंकिंग मीन्स किसी एक वर्कबुक में एक शीट से दूसरे शीट को अगर आप हाइपरलिंक करना चाहें। सो लेट अस क्रिएट एन इंटरनल लिंक हियर। वी वांट टू लेट्स से जंप ऑन टू द फर्स्ट शीट हियर, फर्स्ट शीट ऑफ द वर्कबुक, दैट इज सेटअप। तो वहाँ जाने के लिए पहले यू राइट समथिंग, द टेक्स्ट, you write some text here, and now we will insert the link here. So the shortcut, the combination shortcut for ribbon is very weird actually. That is Alt and then N, and then you have to see press is I2. So instead of doing that, what you can do, you can directly press Ctrl+K. Okay, what we want to do, we want to do an internal linking. So that is, we want to go to a place within this document. So you have to select this one, place in this document. Now select the sheet where you want to go to. We want to go to the first sheet, that is the name of that is the setup sheet. And also you can specify the cell in where you want to go, where you want to jump. So let us keep it A1 only, the first cell of the sheet, and now press OK. So this text gets now turns into blue, and also there is a underline here. Now if I put my cursor on this setup, on this text, now अब ये जो cursor है that has turned into a hand, and it is showing us the link as well. So you can see as a comment you can see this link here. So if I click on it, you jump onto the setup sheet on the first cell. So this is how internal linking works. Next, multiple sheets at a time. You can insert hyperlink on multiple sheets at one time. So let me show you how. Let us copy this link only, and we want to put it on multiple worksheets. ऐसा जनरली हम फाइनेंशियल मॉडल्स में भी करते हैं। अगर आप हर शीट में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फर्स्ट शीट है आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, बिकॉज ऑन द फर्स्ट शीट ऑफ अ फाइनेंशियल मॉडल यूजुअली वी प्लेस द इनपुट्स और दी एजम्पशंस। तो अगर आप हर शीट में उसका लिंक देंगे तो इट वुड बी इजी टू रेफर। सो फॉर नाउ लेट अस कीप वर्किंग विद द सेटअप शीट ओनली। तो लेट्स से हम इन तीनों शीट्स पर दिस पेज स्पेशल एंड दिस
फॉर्मेटिंग एंड दिस क्विक एक्सेस। तो इन तीनों शीट्स पर हम इस हाइपरलिंक को प्लेस करेंगे। तो बट मेक श्योर दैट यू सिलेक्ट दैट सेल जो तीनों शीट्स पर एम्प्टी है। तो जो A1 सेल है दैट इज एम्प्टी इन ऑल दिस शीट्स, तो हम A1 को सिलेक्ट करेंगे। बिफोर दैट what you have to do, you have to select these three sheets simultaneously. How can you do that? We have already learned in the worksheet section, control shift and page up. So उससे ये तीनों sheets एक साथ select हो गई and now you can paste the link which you have copied from the hyperlink sheet. तो अब यहाँ पे आप paste कर दीजिए। So what do you see कि इन तीनों sheets पर A1 सेल पर एक साथ ये link copy paste हो चुका है। Okay, and now we can use this link to go to the setup sheet. So this is the way how you can put one link on all the sets at one time. Okay, so that was easy. Next is an external link. अगर हम किसी इंस्टेड ऑफ लिंकिंग इन विद इन दिस वर्कशीट हम किसी दूसरे शीट को या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो चलिए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को लिंक करके देखते हैं। आपको पहले कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर लीजिए एंड अब यहाँ पर आपको लिंक क्रिएट करना है। तो प्रेस Ctrl+K। नाउ वी वांट टू यूज़ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन आवर पीसी। तो उसके लिए आपको ब्राउज करना पड़ेगा। लेट अस गो टू डेस्कटॉप, जहाँ भी आपकी फाइल लोकेटेड है। वी वांट टू रेफर टू दिस न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हियर। सो आई प्रेस ओके। नाउ दिस हैज कन्वर्टेड इनटू अ हाइपरलिंक। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस लिंक नाउ दैट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट गेट्स ओपन्ड। ओके, दैट इज सिंपल। नेक्स्ट इज अ वेबसाइट। वैसे आप किसी वेबसाइट लिंक को अगर यहाँ एक्सेल में कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर देता है। सो लेट्स से इस वेब एड्रेस को अगर हम कॉपी करें एंड यहाँ पर पेस्ट करें, then what do you see? Excel has by default converted it into a hyperlink. And अब यहाँ पर क्लिक करने से you will refer to that website. You can also change the way you want to present this link. अब जैसे ये लिंक काफ़ी लंबा है and I want to keep it short and simple. So for that what you can do, make a right click here or shift F10 and now click on use this edit hyperlink. तो enter करेंगे। Now what you can do, see here text to display. आप इस लिंक की जगह पर आप क्या शो करना चाहते हैं। तो let's say this is a LinkedIn link, so I am using the name LinkedIn here and press OK. Now what do you see? अब वो लिंक जो है अब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। हाइपरलिंक टू शेप्स और आइकन्स। If you are using a version earlier to 2019, then you can insert a shape. बट अगर आप 2019 यूज़ करें तो आपके पास ये आइकॉन्स का ऑप्शन भी होगा। सो हाउ कैन वी यूज़ इट? चलिए आइकॉन्स लोड होने में टाइम ले रहा है तो हम शेप्स पर ही इंसर्ट करते हैं। सिलेक्ट एनी शेप, उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए एंड अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड गो टू दिस लिंक हियर। लिंक पर क्लिक करेंगे एंड नाउ सिलेक्ट द एरिया वेर यू वांट टू गो टू। तो चलिए वी वांट टू गो टू द सेटअप शीट अगेन। तो सेटअप शीट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड प्रेस ओके। सो नाउ दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ बटन फॉर मी। तो व्हाट आई यूजुअली डू, आई डाउनलोड अ बटन पिक्चर फ्रॉम द गूगल and then I create a hyperlink on that picture. So that looks really nice. Okay. So next is the hyperlink formula. There is a hyperlink formula as well. तो इसमें आपको क्या मांगेगा hyperlink में? You have to give the link location. So let's say I want to jump to this cell A1 here. तो A1 पर जाने के लिए what we usually do? तो A1 पर जाने के लिए आपको यहाँ पे #A1 लिखना पड़ेगा एंड नाउ यूज दिस हाइपरलिंक
formula, select this. अगर आप इस लिंक को कोई नाम देना चाहें तो आप यहाँ नाम दे सकते हैं, अदरवाइज दिस इज ऑप्शनल, यू कैन क्लोज इट and press enter. Now this has converted into a hyperlink. So if I click on this now, you go to the cell A1. Similarly आप यहाँ से किसी दूसरे शीट को भी रेफ़र कर सकते हैं. So let's say हम इस पेज स्पेशल शीट का B1 सेल को हम रेफ़र करना चाहते हैं. So for that आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इक्वल को अब आप चेंज करके हैश कर दीजिए. And now use this hyperlink formula again. So hyperlink, select this cell एंड लेट्स से इस बार इसको एक नाम भी दे देते हैं, नाम देते हैं पेज स्पेशल एंड क्लोज इट. सो दिस हैज कन्वर्टेड इनटू अ लिंक नाउ एंड अब इस पे क्लिक करेंगे तो यू गो टू द पेज स्पेशल B1 सेल. ओके, सो दैट्स इट फॉर द हाइपरलिंक डिस्कशन.